آپ سمپلی اسٹیٹمنٹ لینا چاہیں گے کہ بچوں کا سب سے بڑا یہ بات کہنا ہے کہ بھائی میں امتحان دے کے آیا, 190 نمبر کا امتحان میرا ہوا, آئی ڈونٹ نو کیسے ان کو پتا چلتا ہے 190 نمبر کا, لیکن 190 نمبر کا کہتے ہیں میرا امتحان ہوا, میرے نمبر آئے 120. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ٹیسٹ کی جو کی تھی اس میں کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے پرابلمس آ جاتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں شاید پریزمپٹیولی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایکچوئلٹی کیٹیگری سے مسائل آ رہے ہیں, تو ان کو کیسے بتایا جائے کہ کیسے آپ ایشورنس کرا سکتے ہیں کہ بھائی وہ صرف وہاں پہ ہوا, یہاں ایسا نہیں ہوا. دیکھیے سب سے پہلی چیز جو کوشچن بینک کی جو ہوتی ہے وہ کوشچن بینک میں ہوتی ہے. کوشچن بینک میں سوالات ہوتے ہیں, ان کے جوابات صحیح جوابات کی. کوشچن بینک ٹیپس کے پاس نہیں, نہ انہوں نے بنایا ہے, نہ ان کو کبھی کوئی تعلق رہا ہے, نہ وہ دیکھ رہا ہے. کوشچن بینک جو فائنل ایگزام کا کوشچن بینک وہ پی ایم سی نے بنایا, ہمارے ایکسپرٹس نے بنایا, ریویو ہم لوگوں نے کیا, اس کے بعد اس کو ہم نے سیل کیا, اس کے پراپر کیز میں اسٹرکچر ڈال دیا, اور یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے, کمپیوٹر میں انپٹ ہو گئے, اس کے بعد انکرپٹ, یہ پیچھے سرور میں پڑے. اب بچہ جب اپنا امتحان دیتا ہے, سبمٹ کرتا ہے, تو اس کے جو بھی جوابات ہوتے ہیں وہ اٹھ کے سرور میں جاتے ہیں. سرور جو ہماری پی ایم سی کی ہے اس سے وہ رزلٹ کو چیک کر کے نظام دیتے ہیں. تو یہ تو شک ان کے ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ کی غلط ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں, آپ نے جیسے کہا 35% میں امتحان, صاف سیدھی بات, ہزاروں فیل ہوئے اور ہزاروں پاس بھی ہوئے. اگر کی غلط ہوتی تو دیکھیے سمپل سی بات, ایک وہ جوس مشین ہوتی ہے, اگر وہ خراب ہو جائے نا تو آپ اس پہ انار لگا لیں یا کنو لگا لیں یا گریپ فروٹ لگا لیں, جوس نہیں نکلے. اگر مشین ٹھیک ہے, پھل میں خراب ہے, تو جوس جو صحیح ہے پھل اس کا جوس نکل آئے گا, جو پھل خراب ہے اس کا جوس. بھائی ہر بچہ, کوئی ایسی گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ ہر بچہ پاس ہوگا. ایکسپیکٹیشن آپ نے کہا تھا نا ان کی ہے کہ 180. میں جب بھی زندگی میں امتحان میں بیٹھا میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی تھی میں 100% تھا, ظالم کبھی 60%. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ امتحان کا, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی تیاری شاید پوری طرح سے نہ کی ہو, صحیح طریقے سے نہ کی ہو, شاید اس دن میرا فوکس نہ. تو یہ جو ہے معاملہ, جس آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 65% بچوں نے بھی امتحان کیا. مجھے بے تحاشا بچوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہیں, ہم یہ سن رہے ہیں, اور میں ان سب کو ایک ایک جواب دے رہا ہوں. میرے پاس 1500 واٹس ایپ سے زیادہ روزانہ آتے ہیں. سب کو میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ یہ سوشل میڈیا بند کر دیجیے 15-20 دن کے لیے, ٹی وی دیکھنا بند کر دیجیے, سننا بند کر دیجیے, امتحان اپنی تیاری پہ فوکس کریں بس. یہ صرف وہ شور مچا رہے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے کسی کے اوپر تو الزام ٹھہرانا ہے, وہ ٹھہرا لیں, مگر جو بچہ پاس ہوا ہے وہ ہزاروں, ان کو بھی تو لے آئیے میدان میں, ان سے بھی تو پوچھیے کہ وہ پھر کیسے پاس ہوا. اچھا, اس پہ یہ آبجیکشن بچے کرتے ہیں نا کہ جی ہر بچے کا انڈیویجول ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اب جس کی کیس ٹھیک نکل آئی اس کی 180 نمبر آ گئی, جس کی نہیں ٹھیک نکل آئی اس کی 120 آ گئی. اس کا بھی دیکھیے کامن سینس بھی ایک چیز. ہمارا کوشچن بینک 2000 سوال نہیں, وہ تو 16 سے 20,000 سوالوں کا کوشچن بینک. ہر سوال کے اوپر ایک نمبر لگا ہوا ہے, سوال کا نمبر ہے 128, اس کا جواب ہے, وہ صحیح جواب اگر جو بھی ہے وہ کی میں نوٹڈ ہے. ٹھیک, وہ سوال آپ کو آئے آپ کے پیپر یا میرے پیپر میں, اس کی تو وہی ہے کیونکہ اس کا سسٹم میں جواب ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس آپ کے پیپر کی کیس غلط ہے اور میرے پیپر کی کیس صحیح ہے, یہ بھی غلط ہے. لوگوں کو دیکھیے اصل میں شاید کمپیوٹر بیسڈ ایگزام پہلے انہوں نے دیا نہیں, یا اگر واقف بھی ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں. کمپیوٹر بیسڈ ایگزام سے زیادہ انٹیگریٹی امتحان کی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر کوئی سبجیکٹو مارکنگ نہیں. یہی بچے الحمدللہ بھی ایف ایس سی کا امتحان بھی دے کے آ رہے ہیں, وہاں پہ تو سبجیکٹو مارکنگ ہوتی ہے, ایسے لکھتے ہیں, پتا نہیں کہاں ایگزامنر بیٹھا ہے, ان کو تو نہیں پتا, وہ ان کا ایسے چیک کرتا ہے, وہ کیا نمبر دیتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا, نہ چیلنج ہو سکتا, نہ شور مچاتے ہیں. یہ کیوں بات ہے کہ اے لیول پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں, سیٹ پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں, اور جب یہ یونیورسٹی جائیں گے انشاءاللہ میڈیکل کالج جائیں گے, وہاں پہ جب وائواز ہوں اس کا ٹرسٹ کیسے کریں گے. اس کے بعد جب انہوں نے ایف سی پی ایس کا امتحان دینا ہے پوسٹ گریجویٹ کے لیے, وہ بھی کمپیوٹر پہ ہوگا, اس کا کیسے ٹرسٹ کریں گے. دیکھیے یہ ایک انہیرنٹ بات ہے, ان بچوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک ایگزامینیشن سسٹم میں اگر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ سسٹم کا کبھی حصہ بنیں گے. یہ شور شرابے سے نہیں کوئی فائدہ ہوگا, آپ کو سسٹم کو ایکسپٹ کرنا ہے, اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اگر اعتماد ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا غلط ہے, آپ سے یہ نہیں.
अपना क्वेश्चन बैंक नहीं खोलती है। अच्छा, वो कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक हमें ना दें, हमें कीज किस किस में बट store मुझे है? एक चीज बताइए, किस चीज की देते हैं, किस सवाल की? नहीं मतलब कि जो फॉर एग्जांपल अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना, आ खान पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, जी। वो हर जी सेक्शन वाइज जो जितने भी उनके सेक्शन है उनका जी। तमाम के तमाम का रिजल्ट सेक्शन वाइज भी देता है। अभी जी, एमडी subject कैट wise। जी सर, वो अभी एमडी कैट से स्टेट पर डाली। नहीं, अभी देखिए बच्चे को जो रिजल्ट आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड आधे घंटे के बाद, उसको ये मिल रहा है मेरे 181 नंबर आए हैं 280। वजह ये है ताकि वो फौरी कॉलेजेस में अप्लाई कर सके। जिस दिन इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह 30 सितंबर के बाद, उसके बाद हर बच्चे के पास एक ऑनलाइन उसके अकाउंट में सर्टिफिकेट आएगा जिसके ऊपर उसका रिजल्ट होगा, सर्टिफाइड बाय पीएमसी कि आपका ये रिजल्ट है। उसमें बायोलॉजी में आपके कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, लॉजिक रीजनिंग में कितने आए, अंग्रेजी में कितने आए, वो सब लिखे। तो वो सब वो डिस्क्लोज करें, वो कुछ पाने की जरूरत है। हमारा पेपर में वाईफाई बंद हो जाता है, मतलब कि ये समझाया कि इंटरनेट सर्वर है क्या, इंटरनेट है क्या, और फिर इसका वाईफाई से क्या कनेक्शन है, कहाँ तक कनेक्शन है, एक्सटर्नल वाईफाई से। देखिए पहली बात, ये ऑनलाइन इम्तिहान, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरी, जो हमारा सेंटर है, जो टैबलेट्स हैं और जो सर्वर है, वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर नहीं है। टैबलेट्स जो हर जो एग्जाम सेंटर है वो पूरा एक यूनिट है, सेल्फ कंटेन यूनिट है, वहां पे सर्वर्स लगे हुए हैं। टैबलेट्स उस सर्वर से कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क से, जो वायरलेस इस्तेमाल कर रहा है। मगर उस पर जब इम्तिहान शुरू होता है तो बच्चा अपना रोल नंबर डालता है, अपना पासवर्ड डालता है। जैसे ही वो पासवर्ड डालता है, उस सर्वर से उसका पर्चा टैबलेट के अंदर आ जाता है। अब उस टैबलेट के अंदर है कि बच्चा वहां से एग्जाम सेंटर से निकल के बाहर खड़ा होता है, जहां कोई वाईफाई नहीं होगा, फिर भी इम्तिहान चलेगा, रिजल्ट पेपर चलेगा। देखिए, ये कई बच्चों ने मुझे कहा कि जी वो हमारा वाईफाई का सिग्नल खत्म हो गया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अच्छा बेटा, वाईफाई का सिग्नल खत्म हो गया, तुम्हारा सवाल फिर भी आ रहा था, अगला सवाल आ रहा था, जब तुम जवाब दे पा रहे थे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इसका मतलब सिस्टम चल रहा है। वो टैबलेट के अंदर जो बच्चा सवाल का जवाब दे, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होती है उसको एडिट भी करने की। बच्चे सवाल स्किप भी कर सकते हैं और वापस आके बाद में उसका जवाब दे सकते हैं, जो मर्जी ये करें। जब इम्तिहान का टाइम खत्म होता है तो एक स्क्रीन आती है उनके पास कि प्लीज सबमिट फाइनल आंसर्स। ये जब वो सबमिट का बटन दबाते हैं, आखिर में जो भी इन्होंने फाइनल जवाब दिए होते वो उठ के टैबलेट में सेव होते और फिर हमारे लोकल सर्वर में आते हैं। उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है जहां से लोकल सर्वर हमारे मेन सर्वर को रिजल्ट भेज देता है ताकि इनके एसएमएस पे आ जाए वगैरह। ये तो और एक बात समझ आइए, वाईफाई का कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। ये इनका इम्तिहान सिक्योर्ड उस टैबलेट के अंदर सेफ है और सर्वर कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट कर रहा होता है ताकि अगर गलती से उसकी वजह भी आपको समझा। ये बैकअप सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। टैबलेट मेरे हाथ में, इम्तिहान उसके अंदर सेफ है, मगर जो लोकल सर्वर है वो भी हर 30 सेकंड के बाद उसको अपडेट कर रहा होता है। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता टैबलेट पड़ी है, बच्चा के हाथ में पानी है, टैबलेट गिर गया, टैबलेट जल गया, उसी वक्त हमारे पास बैकअप टैबलेट है, हम पकड़ा सर्वर में उसके सारे जवाब मौजूद है, फौरी टैबलेट बैक लोड होगी और टैबलेट में उसका इम्तिहान वापस आ जाएगा। ये सो इन बच्चों को ये गलत फहमी इनकी दूर कर देनी है हमेशा के लिए कि इसमें टेक्नोलॉजी में कोई मसला नहीं है। रोजाना हम सिस्टम चेक कर रहे हैं, कीज भी रोज वेरीफाई हो रही है, एवरी डे एवरीथिंग इज वेरीफाइड। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक हमारे सेंटर में हमने इम्तिहान एक सुबह का सेशन वो जी, और उस पर फौरी मैंने देखा सोशल मीडिया पे शुरू हो गया जी, इंटरनेट गिर गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या। मुल्तान में जो मुल्तान में हुआ मैं आपको उसके बता देता हूँ क्या वो इंटरनेट का फिर वही कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारे इक्विपमेंट लगा ना, सर्वर्स लगे हैं, राउटर्स, बहुत सारी चीजें लगी, हर चीज का एक बैकअप यूनिट है, वो भी है। एक हमारा एक बड़ा क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वो उस दिन सुबह इम्तिहान बिल्कुल शुरू होने से पहले जब हम टेस्टिंग करते हैं वो जल गया, बैकअप था, बैकअप ऑन, मगर वो बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट। और एक पॉलिसी है हमारी, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है टेक्नोलॉजी कि भाई क्रिटिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी बैकअप जरूरी है ताकि इम्तिहान बीच में ना रुक जाए। वो पता किया इट वॉज नॉट अवेलेबल इन मुल्तान एट दैट टाइम, वो लाहौर से, व्हिच मेंट के 3-4 घंटे लग जाए। इसलिए फौरी डिसीजन लिया गया, स्टॉप द सेशन, बैकअप के बाद इम्तिहान चल सकता था
बैकअप ऑन था, सिस्टम चल सकता था, मगर उसका बैकअप तीसरा मौजूद, इसलिए वो इम्तिहान रोका गया। दोपहर का इम्तिहान हुआ, सुबह के इम्तिहान को हमने रीशेड्यूल किया जब तक वो पीस ऑफ इक्विपमेंट लाहौर से ये। उसके बाद एक्चुअली हमने एक और काम किया, हमने अपने 24 के 24 सेंटर्स पे अब एक बैकअप नहीं 2 बैकअप्स ताकि वो भी इंशाल्लाह। तो इस वजह से वो रीशेड्यूल हुआ, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हमने बच्चों के लिए किया टू इंश्योर कि उनका इम्तिहान सिक्योर है, कोई उसमें हल्की सी भी गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये है कि वो कहते थी 4 से 5 सवाल हमारे आउट ऑफ सिलेबस पूरे 210 के इम्तिहान में थे। अब पहले तो ये होता था ना, सब बच्चों का एक एग्जाम था, डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स देखते थे कि भाई ये सवाल सबको नहीं आ रहा। अब इंडिविजुअल जब एग्जाम आ रहा है तो उसमें डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स देख के सवाल जो है निकाला कैसे जाएगा, देखिए वैसे मार्क्स मिलेंगे उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम बहुत सारे दुनिया में एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जहां रिजल्ट इमीडिएट था, उनका डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स का एक मेथोडोलॉजी है, वो एक्चुअली वो सारा एग्जाम एनालिसिस उससे पहले किया जाता है क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन बैंक को एक्चुअली सॉल्व किया जाता है, वहां से डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स क्रिएट तो वो हो चुका। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट के बाद भी डिस्क्रिमिनेटरी एनालिसिस करेंगे पूरा A to Z। अगर देखिए लेटेस्ट और बहुत कम होता है, जो चांसेस आर प्रॉब्ली 0.1%, 0.01%, एक सेकंड कि अगर लेटेस्ट एक सवाल निकल आता है जिसपे हम एग्जाम एनालिसिस के बाद कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंडेक्स, स्ट्रेट अवे होगा क्या, एवरी चाइल्ड विल गेट 1, ये मगर वो मैंने आपको कहा वो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो यही है कि वो बहुत मुश्किल से कभी कभी कोई 0.1% चांस होता है। और देखिए हमारी तो एक पॉलिसी रही है, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम लोग कोई चीज छुपा जो होगा हमको। लास्ट ईयर पे आपको याद है कि हमने एग्जाम के बाद पूरा एनालिसिस पब्लिक किया था कि नहीं किया, इससे पहले किसी ने किया है कभी कोई? तो फिर जब हम ये करने को तैयार, ये कभी कोई ये नहीं करेगा कि उसने कुछ छुपाना, हमें छुपाना कुछ नहीं। वी वांट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन, और हमें ये भी पता है कि इस पे कुछ वक्त लगेगा कि बच्चों को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आएगा। वो 1-2 दफा करेंगे, प्रोसेस में फिर गुजरेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नया सिस्टम है, नया तरीकेकार है, और शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी के हालत से उधर इस वक्त नहीं रही है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि क्योंकि हम लोग एक्सेसिबल है, हमारी एक ओपन डोर पॉलिसी है, ऑनलाइन बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, फोन पे आपके काउंसिल के मेंबर्स हैं, अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, सब हो गए लोग, बच्चों को मैसेजेस था। मुझे कल रात को 1-1 बजे तक बच्चों के मैसेज आए। तो देखिए शायद इसकी वजह है क्योंकि हम एक्सेसिबल है, तो शोर भी ज्यादा है, जाहिर बात है कोई मौजूद है सामने तो ज्यादा शोर मचा सकते तो मचा रहे। वो सारे आपके एग्जामिनिंग अथॉरिटी जहां पे फोन नंबर तक नहीं किसी के पास फोन कर देता, उनके ऊपर कुछ नहीं मसला, यही तो वो दैट्स ऑल राइट, वी आर ओके विद दिस। हमें पता है टाइम लगेगा एंड हमारी जिम्मेदारी कि हम स्लोली उनको इस सिस्टम में और प्रोसेसेस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दे पाएं। अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हर सब्जेक्ट में नॉलेज गेन की, हम सिर्फ टेस्ट ये कर रहे हैं कि जो आपने नॉलेज गेन की है क्या सचमुच वो आपने गेन की है, या आपने उस इम्तिहान के लिए 2 महीने लगा के रट्टे मार के मेमोराइज कर। मुझे बच्चे बार बार पूछे सर मुझे 10 दिन और चाहिए, मैं कहा जी 10 दिन क्यों चाहिए, क्या 10 दिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद हो जाएगा अगर आपने वो पढ़ा नहीं था 2 साल में और उसकी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ 2 महीने के रट्टे में आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझ सकते ना हो, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आप समझ पाते। आप ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़े होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी बच्चे को डर नहीं होना चाहिए, वो जाके ध्यान दे सकता हूं, मैं आपको लिख के दूं। अगर जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो एमडीकैट में है। हिसाब से हमने पूछा कि 6,000 रुपए फीस है, तो उन्होंने कहा जी एक फिजिकल एग्जाम 2 एग्जाम एक टेस्ट है, तो आपने टेस्ट पर लेकिन वो नहीं, उससे टेस्ट डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि एक्चुअल स्टिमुलेशन वो तो ऑनलाइन है, उसमें समझ वो जो आप कह रहे हैं मॉक एग्जाम की बात कर रहे हैं एट द सेंटर। देखिए उसमें मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकाल देता है, वो था कोविड जो सर्टन लॉकडाउन आप लोगों को, उसके ऊपर हमने एडवाइस ये नहीं किया कि ना करिए, ये आप 2 दफा करिएगा, इसको कंट्रोल करना होगा। आपने देखा है कि इवन फॉर दिस एग्जाम आपका हर सेंटर स्ट्रिक्टली अंडर एसओपीज फॉलो हो रहा है, इवन दो देयर वर अ लॉट ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस।
किसी भी एग्जाम सेंटर में हमारा जो 24 एग्जाम सेंटर्स हैं 150 से लेकर 250 तक बच्चे, और इसीलिए सुबह शाम दोनों सेशंस करें ताकि बच्चे ज्यादा ना हो SOPs पर, इसलिए मॉक्स बिकॉज ऑफ, मगर प्रैक्टिस एग्जाम्स ऑनलाइन अवेलेबल, जिससे बच्चे को एनवायरमेंट का भी पता था कि एनवायरमेंट ये है। दूसरा, हमने बार बार ये बात की कि प्लीज ये आप कर लीजिए, फ्री में है, एक टेस्ट को कर लीजिए, क्यों आपको समझ आ जाए। नहीं देखिए मसले, मैंने भी इसको क्लैरिफाई बड़ी बता, मसले का इशू नहीं, हमने बार बार कहा था ये इम्तिहान फाइनल नहीं है, क्वेश्चन बैंक, ये प्रैक्टिस इम्तिहान। क्यों आइडिया देने के लिए, ये सवाल किस तरह के बने, लेकिन आइडिया गलत क्या? नहीं आइडिया गलत नहीं था, बिल्कुल गलत है। इन सवाल थे वहां, सवाल तो पढ़ते। इस वक्त मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्या सबसे बड़ी असेसमेंट आ रही है, बच्चे जवाब पहले पढ़े, सवाल उसके बाद। वो सबसे पहले उनकी आंख को 4 ऑप्शन देता, फिर सवाल पढ़े, पीछे से अकेडमी में रटे मारे, वो सवाल का जवाब देते हैं, ये जवाब, अब उसके बाद सवाल शुरू करते हैं पढ़ना, आधा सवाल पढ़ते हैं, फौरी उसको सिलेक्ट करते। ये गलती है, ये सवाल वो नहीं है ये असेसमेंट जो किसी अकेडमी के पास। ये असेसमेंट किस डेटा की क्या मतलब ये असेसमेंट जो है आपको पहले दिन मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल बेसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस, वो तो ये भी दे सकता है कि सवाल पहले पढ़ने या आपको अंदाजा नहीं इस सिस्टम का क्या था, ढूंढ रहे हैं, आपका दिमाग ढूंढ रहा है, आपने रट्टा मारा तो आपका दिमाग टेक्निकली ढूंढेगा। नहीं रिकॉल पेज पे है ना, तो रिकॉल पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। रिकॉल के ऊपर सवाल तो देखिए, रिकॉल जवाब के पास है, बट ये रिकॉल का मतलब ये कौन सी साइंस में रिकॉल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वही सवाल होगा, वही जवाब होगा, इसको रट्टा कहते हैं, इसको रट्टा कहते हैं, रोट है, ये रिकॉल नहीं है। लेकिन ये जो आप फिगर देखिए, जो आपने अभी बताया कि असेसमेंट में, क्योंकि ये तो डेटा आएगा बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जवाब ऐसी भी होगी कि जो सवाल देख के जवाब देती होगी ना। बिल्कुल, अब वो बात होगी माशाल्लाह। मैं आपको ये तो आपका ओपिनियन है, मैं आपको सिंपल चीज बता सकता हूँ, हजारों बच्चे पास हुए, हजारों फेल, बट ये कौन से इम्तिहान में लिखा है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा? नहीं ऐसा तो कहीं नहीं, लेकिन मसला ये है ना कि देखिए पहले ये होता, पाकिस्तान में ये होता रहा था कि हर बच्चा जब एग्जाम दे के आता था ना भाई, तो वो कहता 180 नंबर, मेरे 180 नंबर है, जब चीज आती थी ना तो 120 130 140 140। अभी वो कह रहा है कि यार देखिए मेरे पास कोई सीधा सिस्टम के पास है, उनके पास। इसका जवाब दिया, देखिए बड़ा सिंपल बात है, यही तो अनोखी बात हो रही है, यही तो मसला है। नहीं मसला नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। इस सिस्टम में जो लोगों की नजर में नहीं, ये तो फिर सिस्टम खराब हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक भाई, अगर आप एक सिस्टम में और आप इम्तिहान देने जा रहे हैं, आपको इम्तिहान की एक्सेप्टेंस करनी जरूरी है। अगर यहाँ पे हम ये कर दें कि हर बच्चा इम्तिहान दे के एग्जामिनिंग बॉडी के ऊपर सिर्फ उंगली उठा दे, तो फिर तो कोई इम्तिहान ही नहीं मानेगा। अगर कोई इम्तिहान नहीं मानेगा तो क्योस अनार्की क्रिएट कर देगा। क्या ये सिस्टम आप लोग चाहते हैं? नहीं, मसला ये है, लेकिन ट्रांजिशन अभी आप खुद कई बात एक सेकंड, आपका HEC ने भी लगा दिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लगाया ना, क्या आप लोग मुझे ये बताइए वहां पे क्यों शोर मचा? नहीं लेकिन वहां पे जब फेल होंगे बच्चे तब शोर मचा। मसला ये है सर, मसला ये कि फिर सब मसला मसाइल जैसे जन्म लिए वो जब आपने एक आप ही स्टेटमेंट आपने कहा कि भाई पेपर आपने कहा बन चुका है, उसके बाद सिलेबस रिवाइज हुआ, सिलेबस बाद में रिवाइज हुआ, आपने पहले स्टेटमेंट दी, पेपर बन के सील हो गया, वही पेपर एकेडमिक बोर्ड ने अप्रूव भी किया, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट कायम होने लग गया। अब ये मसला है, इसके ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। मगर एक चीज बिल्कुल आप सही, एक चीज समझिए कि मैंने तो सच बोला, जो हुआ था सच बोल दिया, उसके ऊपर भी अगर डेफिसिट ही आना है, ट्रस्ट डेफिसिट, तो मैं क्या कीड़े निकालने तो 120 में निकाल लीजिए, रिजल्ट उसे चाहिए, ठीक है, इम्तिहान है। फर्क सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, इस इंस्टीट्यूशन में फर्क ये है पास्ट में और इसमें कि हम लोग खुलेआम बता देते, ट्रांसपेरेंटली बोलते और सच बोलते, ये फर्क, ये शायद लोगों ने इसकी गलत मतलब निकाल लिया उनके हिसाब से। ये अगर है तो इसमें बैठ के यहाँ पे डिबेट शुरू कर दो, कर लीजिए, आपका हक है डिबेट करना, मैं मौजूद हूँ, पूरे कमीशन मौजूद है, हम सब जवाब देते हैं। मगर देखिए इसका ये मतलब नहीं कि ये उंगली उठा उठा के आप एक सिस्टम को गिरा देंगे, वो नहीं गिरेगा। ये सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। जो वो MD-CAT कराते रहे PMDC में, उनके बच्चों की पेपरों की क्वालिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर प्रोविंस में अलग क्वालिटी की जाती थी, होता था। बच्चा किसी प्रोविंस से 100% ले रहा होता था, किसी प्रोविंस में 70% ले रहे होते। तो देखिए वो भी तो सिस्टम में प्रॉब्लम,
तो ठीक कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, सेंट्रलाइज किया शोध है। अच्छा पूछता है, हमें उसका मसला नहीं है, लेकिन ये कि अगर मुझे एक चीज समझाइए, मेडिकल में क्यों सबसे ज्यादा शोध? क्योंकि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज, मसला है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आती है कि नहीं। अच्छा मुझे एक चीज, अब मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, ये जो बच्चा खुदा ना खास्ता एमडीकैट में फेल हुआ, अब आप उसको क्या कहेंगे? हमारे माशरे में नालायक करेंगे। तो इसका मतलब ये कि ये मोहम्मद जना साहब, ये डॉक्टर नहीं, ये नालायक, मैं नालायक, तो मैं तो मान गया मैं नालायक। क्या मतलब कि इस मुल्क का हर जज नालायक है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं? मसला इस मुल्क का हर चार्टर्ड अकाउंटेंट मसला नालायक है? ये है कि ये बताइए मुझे। लेकिन मसला ये यहाँ से कहाँ से आता है? आप बच्चों को जब स्कूल में होते हैं ना, तो आपको बताते हैं कि कामयाब बनो, इंजीनियर या डॉक्टर बनो, ये कामयाबी का मेयार है पाकिस्तान में। अगर आप ये सोचें कि तीसरी चीज एकदम से ले रहे तो ऐसे नहीं आएगी। तो अपना काम कामयाबी का मेयार सेट किया गया, ये मेयार घरों में शायद सेट यही तो मसला। है। तो फिर ये माँ बाप की जिम्मेदारी, मैं बाप, ये हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों को ये चीज समझाएं कि देखो तुम बच्चे, हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, हर बच्चे की अपनी मेकअप है, और उस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना हमारी जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी, स्कूल्स की जिम्मेदारी, कि बच्चे को कॉन्फिडेंस कि देखो तुम्हारी काबिलियत एक और चीज होगी, इंटेलिजेंस, वो एप्टीट्यूड एक चीज होगी, वो कल जाके किस चीज पे अप्लाई की जाए वो एक और चीज। एक बच्चा मां डॉक्टर, वकील हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, पोएट, क्या हम फैज अहमद फैज साहब को कहेंगे कि वो नालायक थे, कि वो डॉक्टर नहीं थे? ठीक है, तो कुछ भी हो, हर आदमी जो अपनी काबिलियत होती है उससे सोसाइटी में कोई बेहतरी नहीं आता, सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है। भाई देखिए, ये मत करें कि ये क्रिएट कर दें अजीब और गरीब सिचुएशन, कि ये कहना शुरू हो जाए कि अगर डॉक्टर नहीं तो सब नालायक। इसका एक और बुनियादी वजह ना हमारे मुल्क में आपके एमडीकैट के कई बच्चे हैं जो फेल हुए हैं पास में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे पेशों में आगे आगे, लेकिन हर तरह के आपको करवा देंगे, ऐसा क्या बात? चले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। उस पेट को एडिट कर देना थोड़ा सा। करने को वो पता नहीं किस चीज की